بڑے ادب سے بیٹھے ہیں، تیزی کے ساتھ سلام کریں، مجھے میرے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جو وبرکاتہ۔ بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں توجہ دیجیے گا، جن کی عمریں 10 15 20 سال کی ہیں۔ پہلے کے دور میں ہمارے ہندو بھائیوں کی جو عورتیں ہیں، مسلمانوں کے 8 10 سال کے بچوں کو اپنے گھروں میں اٹھا لے جاتی تھیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہندو مذہب کی عورتیں مسلمانوں کے بچوں کو 7 8 سال کے بچوں کو اٹھا لے جاتی تھیں اور ان کے پیروں کو دھل کر کے اپنے گھروں میں چھڑک دیتی اور کہتی تھیں کہ یہ حضور پر درود پڑھنے والی امت کے بچے ہیں، ان کے پیروں کی دھون کی وجہ سے ہمارے گھروں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں برکتیں آتی ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی بیمار نہیں ہونے پاتا۔ لیکن آج مسلمانوں کے بچے رات کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے ڈھابا پہ ریسٹورینٹ پہ گپ شپ کرتے ہوئے، فراڈ کرتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، نشے کی دوا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اور یہی بچے جو پھٹی ہوئی پیڈ پہن کر کے گاڑی میں سائلنسر نکال کر کے ہندو اور مسلمانوں کی گلیوں سے بڑی تیز آواز کے ساتھ گزرتے ہیں، تو وہی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی بہنیں اپنی بچیوں سے کہتی ہیں، بیٹیاں اندر چلی جاؤ، جسم کے لٹیرے گلی کوچے میں ٹہل رہے ہیں۔ اللہ اللہ ہماری وجہ سے حضور کا دین بدنام ہوتا ہے، ہماری سستی اور تساہلی کی وجہ سے حضور کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تم ایک رحمت والے نبی کی رحمت امت ہو، اپنے اچھے کریکٹر سے ہندوستان کی اختلافی فضا کو محبتوں میں تبدیل کرو، تمہاری بڑی ذمہ داری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ بڑی پیاری محفل میں آئے ہوئے ہیں، اس محفل کا عالم یہ ہے، وہ الہ آباد کا درویش کہتا ہے کہ جب ماں بہنوں کی گود کے بچے بیمار ہوتے وہ ان کی سہیلیاں ان کے رونے پر کہا کرتی تھیں کہ اپنے بچے کو کسی حکیم، کسی ڈاکٹر، کسی مستشفیٰ ہاسپٹل لے کے جا، تاکہ اللہ تیرے بچے کو شفا دے دے، ٹھیک کر دے۔ تو بہنیں کہتی تھی چل چل چل، مجھے مشورے مت دے، اپنے بچے کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں جاؤں گی، بولے پھر یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو میری بہنیں کہتی تھیں کہ 2 3 دن کے بعد میرے دروازے پر حضور کی میلاد کی محفل ہونے والی ہے، اپنے بیمار بچے کو لے کے جاؤں گی، میرا بیمار بچہ حضور کی نعتیں، حضور کی باتیں سنتے سنتے شفا پا گیا۔ سبحان اللہ یہ حضور کے ذکر میں تاثیر ہوا کرتی تھی۔ امی حلیمہ کے گھر میں اطراف کے عیسائی اور غیر مسلم سیکولرزم کی گھر کی عورتیں بھی حضور کے پاؤں کا دھون لینے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمارے مزاج تبدیل ہو گئے، ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ ہم اگر کسی فقیر کو 2 روپے بھی دینا چاہتے ہیں تو اس کا دھرم پوچھتے ہیں۔ اگر ہماری دکانوں کے سامنے کوئی ایکسیڈنٹل کیس بھی سامنے آتا ہے تو ہم پہلے اس کا مذہب پوچھتے ہیں، پھر بعد میں اس کی خبر کی دیتے ہیں۔ مسلمانوں، تمہارے اندر یہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جب کھانا کھایا کرتے تھے تو دسترخوان پر بیٹھ جاتے تھے، تو غریب نواز سرکار کے قریب میں کچھ لوگ کھڑے رہتے تھے، تو خواجہ صاحب فرماتے تھے کہ آپ لوگ بیٹھ کے کھانا کھائیں، تو وہ لوگ معلوم کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم دلت ہیں، ہم چھوٹی کاسٹ کے لوگ ہیں، ہم ہریجن ہیں۔ جو بہت زیادہ باہر کی آوازیں ہیں بھائی جان اسے بند کر دیں، اسی کیمپس میں آواز رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباہتیاں فرماتے ہیں کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب مدینہ شریف میں راتوں کو نکلتے تھے تو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ ان سے ان کے بھائی عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ آپ راتوں کو ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو سرکار صدیق اکبر فرماتے تھے میں اس لیے چپل جوتے نہیں پہنتا کہ میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو۔ اللہ پوچھتے تھے یہ کہاں سے سیکھا؟ تو کہتے تھے مجھے یہ بات مدینے والے آقا نے بتائی۔ سبحان اللہ ہم سبحان اس قدر ہنگامہ کرتے ہیں، اس قدر ہنگامہ کرتے ہیں کہ غریب عورتوں کی گود کے بچے گر جایا کرتے ہیں، چیخ و پکار کی دنیا۔ اسی کیمپس میں آواز رکھیں بھائی جان، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ یہ شبھم ساؤنڈ سینٹر کیا ہے، بہت اچھا مائک ہونا چاہیے۔ ہم لوگ بہت تھکے رہتے ہیں لیکن جب اچھا مائک ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ مجھے بغداد شریف سے آئے ہوئے تقریباً 1 مہینے 15 17 دن ہو رہا ہے اور تقریباً 1 مہینے سے کم کا وقت بچا ہے بغداد جانے میں۔ اللہ اور میں ان دنوں میں حافظ سلمان بھائی جانتے ہیں کہ میں ایک رات عشاء کی نماز کے بعد گھر پہ سو جاتا ہوں، صرف ایک رات۔ ایسے ہی کتوں کے طریقے سے چیخنا چلانا، آپ جیسوں کے پیروں کے نیچے بیٹھ کے حضور سیدنا شیخ کی باتیں کرنا، 2 4 لوگوں بڑی محفلوں سے اب دل اچٹ گیا ہے، چھوٹی محفلیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اس میں جارو کشی کرنا، جھاڑو لگانا، آپ جیسوں کے لیے بڑی چادر بچھانا، یہ میری شناخت ہے۔
दुआ करें अल्लाह उलमा किराम के कदमों के नीचे बैठने की इस साथ सईद को हमारे लिए बारिश से नजात बना दे। इस कस्बे में कोई बीमार हो तो अल्लाह ताला उसे शफा अता फरमाए। हिंदू या मुसलमान कोई भी बच्चियां जवान हैं तो अल्लाह उनके लिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने वाले रिश्ते अता फरमाए। अल्लाह सबको हुजूर गरीब नवाज के मिशन की राह का मुसाफिर बनाए। तेजी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे दिल से खुशी है कि कल मेरा सलाम सरकार टीले वाली हजूर शाह मखदूम उलमा अल्लामा शब्बीर अली शाह साहब अलैहि रहमा की बारगाह में मेरा सलाम इंशाअल्लाह। ये बगदादी लोग बैठे हुए हैं, अगर बैठे रहें आप और मेरे भाई हाजी अफजाल साहब तो इनसे मुलाकात करके जाइए हमें, ठीक है। इनकी उंगलियों ने गौस पाक की जालियों का भरोसा दिया। मेरे दिल में अलग से मोहब्बत होती है गौस पाक का दरबार पे। फरमाते हैं कि जैसे गौस पाक वलियों के सरदार हैं, ऐसे ही बगदाद के फलों के सरदार हैं। क्या कहने, बगदाद के पेड़ों के सरदार हैं, बगदाद के लोगों के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के साथ में मैं एक आयत मुबारका का फैज़ जो हुजूर के कौल में शामिल है उसका जिक्र करता हूँ और समाप्त करें। आप कोई बात ना करे, बच्चे खेल कूद ना करें, मुझे तुम्ही से काम है, तुम्ही मेरे जनाजे को कांदा दोगे, तुम्हारी इस कांदा देने की वजह से अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। माइक की आवाज़ नहीं रखना भाईजान, पढ़ाना नहीं, ठीक, बहुत अच्छा। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर ने कहा, सुनना समझना, कोई बात अंधी नहीं मारी जाएगी और कोई बात सकील भारी भरकम नहीं करेगी, बहुत नीचे आके बात की जाएगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, निकाह मेरी सुन्नत है। किसी बोले निकाह मेरी सुन्नत, आवाज आई निकाह मेरी सुन्नत। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं, फमन रग़िबा अन सुन्नती, जिसने इस सुन्नत से इनहराफ किया, रग़बत न दिलाई, तवज्जो न दी, जिसने इस सिस्टम के खिलाफ अमल किया, इस कानून की खिलाफ वर्जी की, हुजूर फरमाते हैं फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। इसका मतलब मैं उसका ज़ामिन, उसका जिम्मेदार नहीं। फिर सुनिएगा, ये बात उनके लिए है जो अपनी शादियों में अकीदे नहीं देखा करते, अपनी शादियों में एतकाद नहीं देखते। क्या कहना, ये उनके लिए है जो अपनी शादियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसरी का दावा करने वालों को भी गले से लगाते हैं। अल्टीमेटम है उनके लिए, हुजूर ने कह दिया फलैसा मिन्नी, इनसे कह दो ये मुझ में से नहीं। इस दौर में उनके लिए भी है कि यूरोप में लड़कियां लड़कियों के साथ रिश्ते करना चाहते, लड़के लड़कों के साथ रिश्ते करना चाहते। हुजूर ने उनके लिए भी अल्टीमेटम दे दिया, फलैसा मिन्नी, मैं इनका ज़ामिन, इनका जिम्मेदार। हुजूर का तरीका क्या है, अन निकाहो मिन सुन्नती। 50% लोग, हम भी शामिल है इसमें, ये नहीं जानते कि सुन्नत किसे कहते। माफी चाहता हूँ कारी फरीद भाई, एक साहब बहुत बड़ा, अल्लामा ज़ाहिर साहब बैठे हुए मुबारक में बैठे हुए सब लोग शामिल, उमर अकबर साहब बैठे हुए हैं। एक साहब तो बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल चलाते हैं, बहुत बड़ा स्कूल चलाते हैं। मेरे बड़े बड़े भाई डॉक्टर साहब हैं, उनके दवाखाने पे आए तो गुम्बद खदरा का स्टीकर देख के मालूम क्या बोले, बोले इसमें किसकी मज़ार है, क्या बात, इसमें किसकी मज़ार है। दिल ने कहा कि गिरेबान पकड़ लो, लेकिन बोले बहुत बर्दाश्त किया। अल्लाह अकबर, हुजूर के रोज़े को न पहचान सके, सब हुजूर के नाम पे खाता है, कमाता है, और कहता है इसमें किसकी मज़ार है, इसमें कौन है, ये स्टीकर कहाँ का है। उसे ये नहीं पता कि अल्लाह के रसूल कहाँ आ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 50% लोगों को ये नहीं पता सुन्नत किसे कहते हैं। आसान कर दो, अन निकाहो मिन सुन्नती, हुजूर फरमाते हैं निकाह ये मेरा तरीका है। समझिए, अब तो इसे समझ लो, जब जब मैं कहूँगा निकाह मेरी सुन्नत है, हुजूर ने कहा, आप समझ लीजिएगा कि हुजूर के कहने का मतलब है निकाह ये मेरा तरीका, मेरी अलामत है, मेरी पहचान है, मेरा शार है, मेरी निशानी है। समझ लेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर ने क्या कहा, निकाह मेरी सुन्नत है, अन निकाहो मिन सुन्नती। शादी के कार्ड पर यह जुमला लिखा होता है, 30 रुपए से लेकर के 400 रुपए शादी कार्ड पर ये जुमले मुबारक आप देखें, हुजूर का फरमान लिखे हैं। कभी गौर किया कि क्या मीनिंग है इसके माने क्या होता है, वो तरीका क्या था हुजूर का। ऐसी ही डीजे पे नाच गाते हुए, खेलते कूदते हुए, गोश्त खा के हड्डियां गैर मुस्लिमों के दरवाजों पर फेंकने की रस्म थी।
ऐसी शादियां होती थी, गरीबों के दरवाजों पर पटाखे छोड़े जाएं, बूढ़े नमाजियों की लाठियां गायब करके उसे नचाया जाए। बताएं यही तरीका था? ना 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 ना, आज आपको पता चलेगा कि हुजूर की फर्स्ट मैरिज कैसे हुई, हुजूर की शादी कैसे हुई, हुजूर ने इस कौल का जो इजहार फरमाया है पहले इस पर खुद अमल कैसे। एक एक शख्स को ये बात याद हो जाए ताकि अपनी बहन बेटियों के सामने ये बातें बयान कर सके इंशाअल्लाह। क्या कहा हुजूर ने? अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह, बच्चे बोले निकाह मेरी सुन्नत है। हुजूर की सुन्नत क्या है, हुजूर का तरीका क्या है? सुनिए आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सगे परदादा के अब्बू हैं जिनका नाम है हजरत अब्द मुनाफ। क्या नाम है? तवज्जो दीजिएगा, क्या नाम है? हजरत अब्द मुनाफ। रास्ता दे दें, रास्ता दे दें। ना ना कोई बात नहीं, चले जाए, चले जाए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, जाने दीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, कोई बात नहीं, मुसाफिर हैं, कहीं से भी शादी वगैरह की महफिलें हो रही है, आराम से जाइए। तो जो दीजिएगा, हुजूर ने क्या फरमाया? अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह। जो लोग मेरे भाई पीछे खड़े हुए, मैं चाहता हूँ बैठ जाएं, कोई दिक्कत ना हो तो भाईजान बैठ जाए, कब तक खड़े रहेंगे, अच्छा नहीं लगता नहीं। आराम से जाने दीजिए, आराम से, जरा मोहब्बत से कह दें सुबहान अल्लाह। अल्लाह इस सुबहान अल्लाह का फैज़ फलस्तीन के बच्चों की रूह को नजर फरमाए। आमीन सुभान अल्लाह। गाड़ी गाड़ी बंद करके निकाले, गाड़ी बंद करके निकाले, आराम से निकालेगा। तो जो दीजिएगा, ये माशाल्लाह हमारे दाएं तरफ बैठे हुए हैं, दूल्हा है, माशाल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत की राह के अनुसार। आराम से निकले, आराम से सपोर्ट कर दीजिए भाई, निकल जाने दीजिए, निकल जाने दीजिए, निकल जाए, कहीं से भी निकल जाए, आराम से निकल जाने दीजिए। जाहिर सी बात है, शादी वगैरह की महफिलें हो रही हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, गली कूचों का अंदाजा नहीं हो पाता, इसलिए उनकी परेशानी को हमें शेयर करना चाहिए ताकि उनका सफर आसान हो जाए। समझ रहे हैं? बैठे तक लोग बैठ जाए, मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर बैठ जाए, वो जमीन बेहतर लगे तो मिंबर शरीफ पर बैठ। सुने आप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा के अब्बू का नाम था हजरत अब्द मुनाफ। हजरत अब्द मुनाफ की शादी मक्के शरीफ में हुई थी, और हुजूर के परदादा के अब्बू की जब शादी हुई तो उनके घर में एक साल के बाद एक शहजादा पैदा हुआ जिसको हुजूर के सगे परदादा हजरत हाशिम के नाम से दुनिया में, हजरत हाशिम के नाम से। यही वजह है कि हुजूर को हाशिमी कहा जाता है, इन्हीं की वजह से हुजूर को हाशिमी नहीं कहा। जब ये बड़े हुए तो इनकी शादी इस खानदान का पहला रिश्ता था जो 480 किलोमीटर के फासले में उस शहर में हुआ जिसे मदीना कहते हैं। अभी हुजूर नहीं आए, हुजूर के अब्बू नहीं आए, हुजूर के दादा नहीं आए, हुजूर के परदादा जनाब हाशिम की शादी मदीने शरीफ में उस खानदान में हुई थी जिसको खानदान बनु नज्जार कहा जाता है। इसी खानदान की लड़कियों ने तीसरी मरतबे जब हुजूर मदीने शरीफ में आए थे तो हुजूर का वेलकम इस्तकबाल किया था। एक रवायत के मुताबिक कुलशूम बिन्त हारिस अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हा की लिखी हुई नात पढ़ करके तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, जिस नात को सुन के फरिश्ते ही नहीं झूमे, अल्लाह के रसूल भी झूम रहे थे। सुभान अल्लाह। इसी खानदान की लड़कियों ने, तो ये खानदान हुजूर की सगी परदादी का मईका, इसी खानदान की हुजूर की परदादी थी, उनका नाम था हजरत सलमा। हजरत, मोहब्बत से बोले क्या नाम था? हुजूर के परदादा का नाम हजरत हाशिम और परदादी का नाम, बोलते रहे, याद करें, हुजूर की परदादी का नाम हजरत सलमा। जब ये हुजूर के परदादा और परदादी इकट्ठा हुए, इन दोनों रूहों का इत्तिसाल का शरफ हासिल हुआ, तो इस घर में एक शहजादा पैदा हुआ जिसको हुजूर के सगे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता। ये नाम तो कुछ कुछ सुना हुआ लग रहा होगा, कहीं न कहीं से आपने सुना होगा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। इनका टाइटल था शीबा, इसीलिए इनके एंट्री करने का हरम शरीफ के अंदर एक गेट था जिसे बाब शीबा कहते हैं, इसीलिए इनकी औलाद को आले शीबा कहते हैं। जब जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हुए तो इनकी शादी मक्के शरीफ में हुई। जिस लड़की से इनकी शादी हुई उसका नाम सुन के देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उसी लड़की को हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, सुभान अल्लाह, फातिमा हुजूर की सगी दादी का नाम था। क्या नाम था? बोले भाई क्या नाम? हुजूर की सगी दादी का नाम फातिमा था, हुजूर की चची का नाम फातिमा था, हुजूर की बेटी का नाम फातिमा था, हुजूर की नवासी का नाम, सुभान अल्लाह, हुजूर की नवासी की बेटी का नाम फातिमा था, हुजूर के बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का नाम
फातिमा बड़ा नाम प्यारा है, सुभान अल्लाह। अल्लाह इस नाम के बरकत, अनवार, तजल्लियात ज़ाहिर फरमाए। आमीन। आमीन कह दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई उसका नाम था हजरत फातिमा। जब ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए तो इनके घर में एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ जो नूरे मुहम्मदी का असल सेंट्रल पॉइंट बना, जिसको दुनिया हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला के नाम से जानती। सुभान अल्लाह। अगर कोई आपसे पूछे हुजूर के अब्बू का नाम क्या है तो क्या बताएंगे? हजरत बोले क्या बताएंगे? हजरत हजरत अब्दुल्लाह। अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला के अब्बू अब्दुल मुत्तलिब, अम्मा का नाम था हजरत फातिमा। ठीक है। उसी वक्त जब हुजूर के अब्बू मक्के शरीफ में पैदा हुए जनाब अब्दुल्ला, तो उन्हीं दिनों मक्के शरीफ में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत वहाब। उनके घर में एक खातून थी, उनकी बीवी, उसका नाम था हजरत बर्रा। उन दोनों के मिलने से उन दोनों के घर में एक शहजादी पैदा हुई जिसका नाम था बीबी आमीना रबी अल्लाह तआला अन्हा। सुभान अल्लाह। ये हुजूर की माँ कहलाती है। मोहब्बत से बोले। इधर जनाब अब्दुल्ला पैदा हुए, उधर हुजूर की माँ अम्मी आमीना पैदा हुई। सुभान। जब ये दोनों बड़े हुए, एक रवायत के मुताबिक दोनों की शादी रजब शरीफ के महीने में। अगर कोई पूछे कि हुजूर के अब्बू का अक़्द किस महीने में हुआ तो एक रवायत के मुताबिक कहना कि रजब शरीफ के महीने में। इंशाअल्लाह बोले। बकौल शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, इसी महीने की जुमा की रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बाप की पुश्त से अपनी माँ के शिकम में तशरीफ ले। आप खामोशी से कह सकते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। इस आमद की तरफ मेरे इमाम ने यूं कह के इशारा किया, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा उस दिल अफरोज साथ पिला। क्या कहने, वाह वाह। हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:25 और 4:35 के दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई। सरकार अबू अली शाह कलंदर पानीपती के रोज़े शरीफा के करीब में लेटा हुआ अल्ताफ हुसैन हाली कहता है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ। अल्लाह के रसूल की आमद हुई। हुजूर जब 6-7 साल के हुए, सुने तवज्जो दे भाइयों, जो बच्चे इतनी उम्रों के हैं वो भी गौर से सुने, मेरी माँ बहनें भी सुने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 7-8 साल के हुए, हुजूर की माँ नहीं, हुजूर के बाप नहीं, हुजूर की बहन नहीं, हुजूर का कोई भाई नहीं। सुने, अल्लाह के रसूल की परवरिश जनाब अबी तालिब ने, याद रहेगी ये बात। हुजूर को पाला पोसा, नशोनुमा हुजूर की हुई, हुजूर को अपने साए आतिफत में रखा जनाब अबी तालिब ने। जनाब अबी तालिब हुजूर से इतनी मोहब्बत फरमाते थे, खुद मेहनतों से कमा के लाते। अपनी बीवी जिनका नाम था फातिमा बिनते असद, ये हुजूर की चची भी हैं, हुजूर की समदीन भी हैं, और हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा की सास भी हैं, मौलाए कायनात की माँ भी हैं, हसन हुसैन की दादी भी हैं, और जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, मोहब्बत से बोले, जनाब मौलाए कायनात की माँ फातिमा बिनते असद को जनाब अबी तालिब कुछ कमा के लाते थे और उन्हें देते थे। वो खाना बनाती थी। जब खाना पक जाता था तो जनाब अबी तालिब के बच्चे हाथ धुल करके दस्तरखान पर बैठ जाते थे और कहते थे कि अम्मी भूख लगी है, खाना निकालें। तो मालूम है जनाब अबी तालिब क्या कहते थे, खबरदार किसी बच्चे को एक रोटी नहीं देना, किसी को कुछ भी नहीं देना। तो उनके बच्चे कहते क्यों क्यों? उस वक्त हुजूर की उम्र 7-8 साल की, क्यों कुछ नहीं देंगे? तो जनाब अबी तालिब कहते हैं जब तक मोहम्मद अरबी नहीं आ जाएंगे किसी को खाने को जब तक हुजूर नहीं आ जाएंगे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। उनके बच्चे कहते अब्बू ये क्या बात है, कमाते आप, पकाती मेरी माँ, और मेरे ही लिए दस्तरखान के वाले रोके गए हैं। तो जनाब अबी तालिब कहते क्यों? बोले मोहम्मद का इंतजार क्यों किया जा रहा है? तो जनाब अबी तालिब कहते मेरे बेटो, मेरे घर में जो रोटियों के ये टुकड़े नजर आते हैं ये उसी मोहम्मद के कदम की बरकतों आया है। वो ना होता चूल्हे नहीं जला करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाब अबी तालिब बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। हुजूर के चचा जनाब बेपनाह मोहब्बत फरमाते, इस कदर मोहब्बतें फरमाते थे। आज मालूम है, आज हमारे घर के करीब में कोई यतीम, कोई बेसहारा बच्चा हो ना, उस सर्दी के दिनों में फटे हुए मोजे भी उसे मिलते नहीं, और हमारे बेटे 2-2, 3-3, 4 किस्म की ब्रांडेड सूटर और जैकेट पहन करके उसके सामने किटकैट और कैडबरी खाते रहते हैं। वो बच्चा सूखी हुई रोटी पर इन्हिसार करता है। समझ रहे हैं?
जनाब अबी तालिब ऐसा नहीं करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जनाब अबी तालिब इतना ख्याल करते थे कि अपने साथ मेन दरवाजे पर हुजूर को सुलाया करते। गर्मी के दिनों में मेन दरवाजे पर जहां से ठंडी हवाएं आती हैं वहां हुजूर को अपने साथ में सुलाया करते थे जनाब अबी तालिब। और अपने बच्चों को अंदर अंदर जहां उमस बहुत होती थी, हब्स गर्मी का माहौल होता था, वहां अपने बच्चों को सुलाया। उनके बच्चे गर्मी में तड़पते रहते थे और हुजूर को दरवाजे के करीब ठंडी हवाओं के साए में जनाब अबी तालिब। लेकिन 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 उनके अपने बच्चे कहते हैं कभी कभी जब हमारी आंख खुलती थी तो हम क्या देखते थे, हम तो अंदर सो रहे थे लेकिन आंख खुली तो हम दरवाजे पर थे और हुजूर दरवाजे पर थे, हुजूर की आंख खुली तो हुजूर अंदर। मतलब ट्रांसफर हो जाता, हुजूर की जगह पे हम सोते रहते और हमारी जगह पे हुजूर सोते। हम अपने बाप से कहते अब्बू जनाबे अबी तालिब जी मेरे बेटो क्या बात है, हम तो अंदर सोए थे, आंख खुली तो हम बाहर हैं और हुजूर बाहर थे, आंख खुली तो हुजूर अंदर है। तो जनाबे अबी तालिब कहा करते थे रातों को कुछ खतरा महसूस हुआ, रातों को कुछ खतरे की घंटी बज रही थी, मुझे कुछ मशकूक आवाजें, खतरा महसूस हो रहा था, तो हमने मोहम्मद अरबी को उठा करके अंदर भेज दिया और तुम्हें उठा करके मोहम्मद की जगह पे लाकर रख दिया। तो उनके बेटे कहते अब्बू अगर हमें कुछ हो जाता तो, अब जवाब अगर हमें कुछ हो जाता तो जनाबे अबी तालिब कहते सुनो मेरे बेटो, तुम जैसी हजारों औलादें मोहम्मद के नाम पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मसलके आला हजरत, तुम जैसी हजारों औलादें मोहम्मद के नाम पे। वाह वाह वाह, बहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चढ़ते रहे, हुजूर क्या बड़े होते रहे, हुजूर तो आने से पहले ही बड़े थे, बचपन में भी हुजूर बड़े थे, हुजूर के सदके में दुनिया बड़ी होती है। अल्लाह के रसूल ने पहला सफर किया था सबसे लंबा, हबशा की तरफ या मुल्क शाम की तरफ या बसरा की तरफ, राहिबों की बदतमीजी की वजह से हुजूर को वापस आना पड़ा। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे मोटे कारोबार में अपने चचा जनाबे अबी तालिब का सपोर्ट करते थे। जब हुजूर की उम्र 25 साल की हुई, कितनी 25, बोले ऊंची बोले, कितनी उम्र हुई? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की हुई, याद रहेगी, याद रहेगी बच्चे सुनो, कितने साल? 25 साल उम्र शरीफ, ये तो जवानी की उम्र होती है और उम्र भी किसकी? अल्लाह के रसूल। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल की उम्र शरीफ, ये जवानी की उम्र होती है। जज़ाकल्लाह। मालूम है अभी हुजूर ने शादी नहीं की, फर्स्ट मैरिज हुजूर की नहीं। मेरी बहनों सुनना, अभी हुजूर की फर्स्ट वाइफ नहीं हुई, फर्स्ट मैरिज हुजूर की नहीं हुई, शादी हुजूर की बाकी है। उम्र शरीफ कितनी हुई? बोले उन्हीं दिनों मक्के शरीफ में हुजूर के पास जो माली बैकग्राउंड था ये कुछ कमजोर था, लेकिन अकीदा क्या है, दो जहां की नेमतें हैं उनको खाली। उस वक्त मक्के शरीफ में एक औरत थी, उसका नाम था हजरत खदीजा। काश कोई इनके नाम पर बगैर कहे सुभान अल्लाह कहे, सुभान अल्लाह, हजरत खदीजा नाम। सुभान अल्लाह। ऐ खदीजा तेरी अजमतों को सलाम, ऐ खदीजा तेरी तकदीर को सलाम, ऐ खदीजा तेरी रिफ़अतों को सलाम। एक शेर पढ़ दूं मैं, शेर पढ़ता हूं। शहरियत जहन्नम की, शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा। अल्लाह के रसूल की हयात मुबारका में ये लड़की थी, अब औरत बन गई। अम्मी खदीजा के पास सबसे ज्यादा दौलत थी। तो जो बात अगर मिस हो जाएगी तो बात बनेगी नहीं। आप कल अपनी बहनों को, भाइयों को, बीवी को, बच्चों को बताना चाहेंगे, नहीं बताते, लिहाजा इसे याद कर लें। हुजूर के दौर में ये लड़की बड़ी हो गई, अब औरत बन गई। पूरे मक्के में सबसे ज्यादा दौलत इन्हीं के पास थी। इनके बाप का नाम था खुवैलद, इनकी बहन का नाम था हाला। समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा पैसे इन्हीं के घर में थे। 40-40 ऊंटों पर इनके लगेज के सामान लगे। अल्लाह, मखदूमा खदीजा से बड़ी दौलत। अंग्रेज ने इन पर एक किताब लिखा है, किताब का नाम रखा है क्वीन ऑफ द मक्का, मक्के की रानी। इतनी ज्यादा पैसों वाली औरत अम्मी खदीजा, इतनी ज्यादा।
पूरे मक्के में उनका बड़ा दबदबा था। आसपास के छोटे छोटे शहर के लोग भी उनके दरबार में झाड़ू लगाते। उनकी शादी हुई थी सही उम्र में, लेकिन कुछ सालों के बाद उनके शौहर का इंतकाल हो गया। खदीजा बेवा हो गई। तो अम्मी खदीजा बेवा हुई तो उनके बाप ने प्रेशर डाला खुवेलत में, ऐ मेरी बेटी दूसरी शादी करी। फिर खदीजा ने एक्सेप्ट कर लिया, आपकी दूसरी शादी हुई, दूसरे हस्बैंड से, दूसरे शौहर से। उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। याद रहेगी बात, दूसरे शौहर से उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। जैसे वो बेटा पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उनके दूसरे शौहर का भी इंतकाल हुआ। खदीजा दूसरी मर्तबे बेवा हो गई। जब 2 मर्तबे अलग अलग शौहरों के निकाह में रहने के बाद बेवा हो गई, आपने अपने बाप को बुलाया और अपनी सहेलियों को बुलाया, खबरदार अब कोई तीसरा रिश्ता लेके मेरे घर मत आना, मुझे मर्द शूट नहीं करते, ये मनहूस मालूम होते हैं, इनके चेहरे मुझे मनहूस मालूम होते हैं, नहूसत टपकती है। मैं इनके निकाह में 2 मर्तबे थी और दोनों मर्तबे ये फौत हो गए, मर गए। अब मुझे मर्दों से एलर्जी है, नहीं शादी करूंगी तीसरी। तो सहेलियों ने कहा अपने दिमाग और अपने जिस्म की ताकत, बोले उसे कारोबार में खर्च करेंगे, अब मैं कोई शादी नहीं करूंगी, मुझे मर्दों से नफरत हो चुकी है, खबरदार कोई रिश्ता मेरे घर में लेके ना आए। खदीजा ने ऐलान कर दिया, बाप ने तसल्ली, ठीक है जो मर्जी मेरी बेटी की। वो, उनका बेटा, उनके बाप, 3 नफर पर मुश्तमिल ये घर आगे बढ़ता रहा और पूरे मक्के की बिजनेस पर कब्जा करता रहा। अम्मी खदीजा कहती मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं, कभी कभी घरों में हुजूर की तारीफ सुनी। अब ये कहानी का टर्निंग पॉइंट देखिएगा। अम्मी खदीजा कहती मैंने कभी हुजूर को देखा, हुजूर की तारीफ मेरे घर में कभी कभी हुई। अम्मी खदीजा फरमाती इत्तेफाक देखिए, एक दिन मैं मक्के शरीफ की गली से गुजर रहा, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी खदीजा कहती हैं उधर से हुजूर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अम्मी खदीजा कहती है मैं इधर से जा रही थी, सामने से हुजूर आ रहे, मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं, लेकिन जैसे हुजूर के करीब पहुंची, मैंने अल्लाह के रसूल को देख के पूछा आप कौन हो, आप कौन हो? मेरे आका मुस्कुरा के फरमाया जिसका कोई नहीं मैं उसका, जहन्नम से निकाल के जन्नत में लेके जाने वाला, जिंदाबाद, गरीबों के सर पे दस्ते शफकत फेरने वाला, यतीमों की खबरगिरी करने वाला, बेवाओं के सर के आंचल का नाम मोहम्मद अरबी है। जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, अल्लाह के रसूल हूं। अम्मी खदीजा कहती मैंने हुजूर को गौर से देखा तो हुजूर की चमकती पेशानी नजर आई। सुनो साहिबो, यूट्यूब की दुनिया में वो क्रीम पाउडर के कमाल पर लुट जाने वालों, तुम्हें पता नहीं कि जिस हुस्न पर आप फिदा हैं वो डुप्लीकेट है। वो जरा से मौसम की तब्दीली से उसकी ओरिजिनलिटी बाहर आ। उस आमीना के लाल के हुस्न की बात सुनो जिसकी वजह से अल्लाह ने लफ्ज़ हुस्न को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने अल्लाह के रसूल के हुस्न के बारे में, जरा प्यार से बोले। जिसने हुजूर को एक मर्तबे देखा फिर किसी को न देखा, जिसने हुजूर को एक मर्तबे देखा फिर किसी को न देखा। कैसे कैसे लोगों ने हुजूर से मोहब्बतें की। अल्लाह अकबर। अम्मी खदीजा कहती मैंने हुजूर को देखा, हुजूर की चमकती हुई पेशानी देखी, हुजूर की आंखें देखी, हुजूर के लब, हुजूर के रुखसार देखे, हुजूर की बीनी शरीफ, हुजूर का ज़क़न मुबारका, हुजूर की समाअत नूर देखी। मेरे दिल से आवाज आई ऐसा हसीन चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। आवाज आई खदीजा देखती भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया। आला हजरत के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आला हजरत मजले भाई अल्लामा हसन बरेलवी कहते हैं ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बना। क्या कहते हैं साहिबो, जरा हुजूर के हुस्न की तरफ तवज्जो तो करें। मुंतजिर है तुम्हारी आंखों का कि वो चाहता है कि तुम इसी हुस्न को अपना मरकज़ो महवर तस्वुर कर लो। अम्मी आयशा फरमाती मेरे घर में एक दुम्बे का बच्चा था, जब तक हुजूर घर में रहते वो दुम्बे का बच्चा हुजूर को ही देखता रहता। हुजूर अगर घर से बाहर निकलते तो उसकी बेचैनी से पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती। यानी जानवर भी हुजूर को देख करके किसी को नहीं देखते, उनकी भी आवाज यही रहती, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्हें। ज़फ़र अली खान की ज़बान में, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। क्या कहने, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो।
अल्लाह के रसूल की तरफ आए, अपनी माँ और अपनी बहनों में हुजूर की नूर की झलक देखें, हुजूर की नूर की सुन्नतों का आईना तलाश करें। तुम्हारी मंजिलें कदम नाज़ मुस्तफ़ा है। सुने, अम्मी खदीजा कहती हैं हुजूर को देखा तो फिर हुजूर सुभान अल्लाह कहेंगे। वो कहती है कि हुजूर की उम्र कितनी थी उस वक्त? सबकी आवाज नहीं आई, तवज्जो रखिएगा। कितनी? 25 साल। वो कहती मेरी उम्र थी 40 साल। कितना फर्क है बोलो भाई? 15 साल का फर्क है। लेकिन अम्मी खदीजा कहती हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में। हमारे दोस्त हैं कुंवर चंद सिंह अशकल बिजनौर के शायर। किस्मतों से मिलती है खाक भी नहीं, 100 युगों पे भारी है एक। सुभान अल्लाह। जब वहां से लौटोगे पांव धो के पीछे, किस्मतों से मिलती है खाक भी नहीं। सुभान अल्लाह। महेंद्र अश्क नाम था उनका, बिजनौर के शायर। हिंदू भाई शेयर नहीं कहते थे? बोलो भाई। मेरे दोस्त थे वो, और महेंद्र की बेटी से ना पहले के दोस्त थे अश्क तुम्हारी साथी से तो बहुत। इनका शेर था, लब जब शाहे शहीदा तेरा नाम आता, सामने साक़ी कौसर लिए जाम आता, मुझको भी अपनी गुलामी का शरफ दे दीजिए, खोटा सिक्का भी तो आता कभी काम आता। कैसे कैसे लोग हैं हुजूर से मोहब्बत करने वाले, जरा मोहब्बत से बोले। तूने अम्मी खदीजा कहती मैं हुजूर से मिल के अपने घर चली आई। जब घर चली आई तो हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ, हुजूर की मोहब्बत का चिराग मेरी दिल में रोशन हो। तूने हुजूर की ये शादी का जो टर्निंग पॉइंट। अम्मी खदीजा कहती है मेरी बिजनेस बहुत बड़ी थी, मेरे 25-30 नौकर सामान बिजनेस का बेचने के लिए बसरा जाने वाले। बसरा कहाँ है? ये कोई के बॉर्डर पर है, बगदाद शरीफ से 550-600 किलोमीटर के पास। समझ रहे हैं? जहां पर वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जो मौला अली के खलीफा, जिन्होंने हुजूर की बीवी अम्मी सलमा का दूध किया, जिनको हजरत ख्वाजा हसन बसरी कहा। उनके करीब में इन उलमा के दिलों की रौनकों धड़कन इमाम आजम जिनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछने जाते थे, वो बुजुर्ग इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन लेटे हुए। बड़ी मुबारक जमीन है बसरा की, मैं कई मरतबे गया हूं। जुबैर बिन अवाम, तलहा बिन उबैद, अनस बिन मालिक जैसे अजीम